Hello students, I am your teacher for today's lecture, and in this lecture also we are going to continue with our chapter of quadratic equations. Now if you recall, in the last lecture I had told you regarding location of real roots of a quadratic equation. We had done many cases like if both roots are greater than a number k, both roots are smaller than a number k, both roots lie between two numbers k1 and k2. Then we had done that if a number k lies between the two given roots, or if exactly one root lies between two numbers k1 and k2. So in each case we had taken two sub cases, a positive, a negative. Accordingly, parabola was opening upwards or downwards. All right. Now related to that only, I am going to tell you a concept, and for that we will do some questions also, in which we will be using the results which we did in the last lecture. All right. Now let us see what are they. So let me give you some points regarding that. So we can write it as a note. First point here would be that suppose we are given that the roots are negative, both roots are negative, then what does it imply? Suppose you are given a quadratic equation with an unknown in it, and you have to find what are the values that unknown can take so that both roots are negative, or both roots are positive, or roots are of opposite signs. So let me write these conditions. So first condition is, suppose we are given that both roots are negative. Is it all right? So both roots are negative. Now what does it mean? On the number line, suppose this is 0, if both roots are negative, that means both roots will be less than 0, right? So both root negative implies we have this condition that both roots are smaller than 0, right? So in the last lecture we had done this case that both roots are smaller than a given number k. Then what are the conditions and how do we solve it? So both roots negative would imply that both roots are smaller than 0. Now the second point, suppose we are given that both roots are positive. All right, both roots are positive. Now let us see, if both roots are positive, what would that mean? Suppose on the x-axis if you have 0, then alpha beta are going to be after 0. So it means that both roots are greater than 0. All right. So what does it imply? That both roots are greater than 0. ठीक है ना? तो दोनों रूट्स बेटा 0 से बड़े हो गए. तो जब भी हमें दिया होगा कि दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, इस बात को हम ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0, तो हमारा वो वाला केस अप्लाई हो जाएगा कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर k. अब देखो तीसरा, थर्ड कंडीशन दैट इज पॉसिबल इज that roots are of opposite signs. All right. So suppose we are given an equation that roots are of opposite signs. Now if roots are of opposite signs, how do we interpret this condition? You can see that on the number line if you have 0, then one root will be smaller than 0, other will be greater than 0. Only then the roots will be of opposite signs. तो इसका मतलब क्या हुआ? कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 0 lies between the roots. All right? तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 lies between the roots. ठीक है ना? ये मतलब हुआ बेटा. तो दैट इज द मीनिंग. और याद है हमने केस किया था नंबर k lies between the roots. तो whenever we are given that roots are of opposite signs, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 0 रूट्स के बीच में लाई करता है. तो वो k नंबर जो हमने किया था रूट्स के बीच में लाई करता है, वो 0 हो गया, और अकॉर्डिंगली हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे लोकेशन ऑफ रियल रूट्स की. ऑलराइट, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. अब पहला क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन पे. वी हैव इक्वेशन x square minus 2 times k plus 1 into x plus 9k minus 5 equal to 0. अब देखो इसमें अननोन क्वांटिटी k है ना, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि इफ द इक्वेशन हैज ओनली नेगेटिव रूट्स, तो अगर रूट्स नेगेटिव हैं तो k क्या वैल्यू लेगा, दैट वी हैव टू ऑब्टेन. इज इट ऑल राइट? सो लेट मी स्टार्ट द सॉल्यूशन फॉर दैट. तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम कि क्या आने वाला है. ठीक है ना? अब देखो इसमें सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं हमारी, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9k माइनस 5 इज इक्वल टू 0.
हमें दिया है इट हैज ओनली नेगेटिव रूट्स। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया नेगेटिव रूट्स का मतलब कि बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन 0। तो कंडीशन हमारी ये है इसमें कि बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन 0। ऑलराइट, ये दिया है हमें, दोनों रूट्स हमारे 0 से छोटे हैं। अब देखो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है लेफ्ट साइड पे उसको हम fx से डिनोट करते हैं। तो लेट fx बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9k माइनस 5। मान लो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया fx। अब आप नोट करो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है। व्हाट डज इट मीन कि पैराबोला अपवर्ड्स ओपन करेगा, रिमेंबर। तो लेट अस ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमारे पास मान लो ये y एक्सिस है एंड सपोज आई हैव दिस एज x एक्सिस। नाउ लुक हियर, दिस इज 0। अब both roots are smaller than 0 and because coefficient of x square is positive, it means that what? That parabola will be opening upwards. अब देखो इसमें एक चीज नोटिस करो, उन्होंने ये नहीं कहा कि रूट्स इक्वल है या डिस्टिंक्ट है, वो बोल रहे हैं इट हैज नेगेटिव रूट्स। तो इसका मतलब रूट्स डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। यहां पे देखो जरा ध्यान से, या तो हमारे पास पैराबोला ऐसे आ जाएगा, है ना, ये देखो इस केस में दो डिस्टिंक्ट रूट्स हो गए, बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर स्मॉलर देन 0। या फिर पॉसिबिलिटी ऐसे भी है, देखो मैं इसी पे बना देती हूं कि रूट्स आर इक्वल। तो भी आप देखो ये दो रूट्स हो गए अल्फा अल्फा, सो बोथ आर लेस देन 0। अब पहली कंडीशन इसमें देखो क्या हो जाएगी, क्योंकि रूट्स कैन बी इक्वल और डिस्टिंक्ट, तो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर पहली कंडीशन आएगी, है ना, कि d विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। d निकालते हैं इसका, देखो व्हाट डू वी गेट, ये हमारे पास देखो ऊपर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये रहा, तो इसमें लेट अस फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। ऑलराइट, तो क्या आया डिस्क्रिमिनेंट, देखो 2 2s are 4, k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 AC, तो दैट मीन्स माइनस 4 इंटू 9k माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, लेट अस डिवाइड बाय 4, है ना, ये देख रहे हो आप 4 आ रहा है यहाँ पे, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो लेट अस डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पे हम 4 से डिवाइड कर देंगे। व्हाट आर वी गेटिंग, ब्रैकेट्स भी ओपन कर लो, तो ये हो गया k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 9k एंड प्लस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इनइक्वालिटी आ गई, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं फैक्टराइज करने के लिए, तो k स्क्वायर माइनस k माइनस 6k प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में देखो k कॉमन है, k माइनस 1 माइनस 6k माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो लेट्स फैक्टराइज, तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखो k माइनस 1 k माइनस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करनी आती है ना, लीनियर इनइक्वालिटीज में हमने किया हुआ है। तो क्या क्या रूट्स आ गए, देखो 1 और 6। तो नंबर लाइन लेते हैं, पहले छोटा रूट आएगा 1, फिर बड़ा रूट आएगा 6। याद है ना क्या करना है, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि दोनों फैक्टर्स में k का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो राइट साइड से प्लस माइनस प्लस। अब देखो इक्वल टू 0 है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है इनइक्वालिटी में, तो इक्वल टू 0 है, तो दैट मीन्स 1 और 6 वैल्यूज के ले सकता है, तो डार्क सर्कल, और ग्रेटर देन है तो प्लस वाला रीजन आएगा। इसका मतलब हो गया या तो k लेस देन इक्वल टू 1 है और k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ऑलराइट, तो ये पहली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आया। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या हुआ करती थी, जब हम बोलते थे बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन अ नंबर के, तो हम ये कहते थे जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है वो 0 से छोटा होगा ना, माइनस b बाय 2a। सो दिस यूज टू बी, इसके कोऑर्डिनेट्स याद है ना, माइनस b बाय 2a कॉमा माइनस d अपॉन 4a, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट जो है माइनस b बाय 2a वो देखो 0 से पहले है। तो लेट अस टेक द सेकेंड कंडीशन नाउ। तो सेकेंड कंडीशन यहां पे हमारी ये है कि माइनस b अपॉन 2a विल बी लेस देन 0। अब देखो इक्वेशन में माइनस b अपॉन 2a चाहिए हमें, तो माइनस b कितना हो गया, 2 टाइम्स k प्लस 1 अपॉन 2, तो दैट मीन्स 2 टाइम्स k प्लस 1 अपॉन 2 विल बी लेस देन 0। सो आई हैव दिस कंडीशन, 2 टाइम्स k plus 1 upon 2 is less than 0. All right. So what do I get?
दिस implies k plus 1 is less than 0. That means k is less than minus 1. Okay, we are getting this. ठीक है, माइनस बी अपॉन 2a आपका क्या है, 0 से छोटा है. एक मिनट, माइनस बी बाय 2a ले रहे हैं ना, तो यहां पे ये है. एक्चुअली इस क्वेश्चन में ना यहां पे थोड़ा सा ये प्लस आएगा बेटा. देयर इज अ करेक्शन, यहां पे प्लस है. ठीक है, सो लेट्स मेक दिस करेक्शन. वी हैव प्लस ओवर हेयर. तो डी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमारा वो पॉजिटिव था. ठीक है, यहां पे ये फर्क पड़ जाएगा, यहां पे माइनस आ जाएगा. इज इट ओके? तो आई हैव माइनस ऑफ के प्लस 1 इज लेस देन 0. ऑलराइट, तो यहां माइनस लगा देते हैं. अब देखो, नेगेटिव क्वांटिटी से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग k plus 1 is greater than 0. That means I have k is greater than minus 1. ठीक है ना, k minus 1 से बड़ा हो गया. तो दिस इज द सेकेंड कंडीशन. तो क्वेश्चन में यहां पे बेटा हमारे पास प्लस है. अब तीसरी कंडीशन देखो, पैराबोला अपवर्ड ओपन कर रहा है, तो जब ये ऊपर जाएगा, देखो यहां पे जब हम इसको ऊपर एक्सटेंड करेंगे तो आप देख रहे हो बीटा के बाद पैराबोला अबव एक्स एक्सिस है. ठीक है ना, इट इज अबव एक्स एक्सिस. सी, तो 0 पे पर्टिकुलरली फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, क्योंकि बीटा के बाद ग्राफ अबव एक्स एक्सिस है, तो 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी. सो लेट अस टेक द थर्ड कंडीशन नाउ. सो थर्ड कंडीशन वुड बी कि 0 पे फंक्शन की वैल्यू बेटा क्या है? पॉजिटिव है. अब 0 पे फंक्शन की वैल्यू है क्या? यहां पे देखो, ये रहा हमारा fx, इट इज 9k minus 5. ओके, बिकॉज इफ यू रिप्लेस दिस x बाय 0, ये वाला भी x 0 से रिप्लेस होगा, तो f of 0 इज 9k minus 5. तो तीसरी कंडीशन में लेती हूं, यहां पे हमारे पास आ गया 9k plus 5 is greater than 0. This implies k is greater than minus 5 upon 9. ये हो गया. तो दिस इज द थर्ड कंडीशन. ठीक है, k बड़ा है किससे? -5 by 9 से. इज इट ओके? माइनस है, अच्छा यहाँ पे माइनस है, तो ये यहाँ पे इसको ठीक कर लेते हैं. ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया बेटा? माइनस है, तो k इज ग्रेटर देन 5 by 9. अब 3 इनइक्वालिटीज थी व्हेन बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन अ नंबर 0. नाउ लेट अस टेक कॉमन सॉल्यूशन. नाउ आई एम गोइंग टू टेक कॉमन सॉल्यूशन. अब देखो, कॉमन सॉल्यूशन में किन किन नंबर्स की बात हो रही है पहले वो देखते हैं. तो पहली इनइक्वालिटी में बात हो रही है 1 की, 6 की. तो वी आर टॉकिंग अबाउट 1, 6, -1 एंड 5 by 9. इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करते हैं. -1, देन वी विल हैव 5 by 9, देन वी आर हैविंग 1, देन वी आर हैविंग 6. पहली कंडीशन क्या थी? देखो, आइदर k इज लेस देन इक्वल टू 1 और k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6. तो लेट मी टेक दैट. सो आइदर k इज लेस देन और इक्वल टू 1. यहां पे देखो, या तो k लेस देन इक्वल टू 1 है या k ग्रेटर देन और इक्वल टू 6. दूसरी कंडीशन देखो क्या है? k इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -1. सो लेट अस टेक दैट वन कि k -1 से स्ट्रिक्टली बड़ा है. और थर्ड कंडीशन ये वाली, k इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5 by 9. तो यहां पे 5 by 9 है, k इससे स्ट्रिक्टली बड़ा है. तो कॉमन सॉल्यूशन चाहिए ना हमें, जहां पे तीनों लाइंस आएंगी. तो देखो, कॉमन सॉल्यूशन यहां पे क्या हुआ? एक तो ये पार्ट आ रहा है, आप देख रहे हो, k बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 by 9 से क्लोज्ड इंटरवल 1, और एक 6 से लेकर इंफिनिटी. ठीक है, अब देखो इसमें हमने ऑप्शन चेक करनी है. अब पूरा इंटरवल कई बार नहीं दिया होता ऑप्शन में, अब पार्ट ऑफ इंटरवल दिया होता है. तो इसमें आपने ये देखना है कि मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सी है, मतलब कौन सी रिमेनिंग ऑप्शंस बेटा रूल्ड आउट हैं. ऑलराइट, तो लेट अस चेक द ऑप्शंस नाउ. अब देखो, जैसे ये बोल रहे हैं पहली ऑप्शन में k लेस देन इक्वल टू 0, ये तो रॉन्ग है. तो ए ऑप्शन हमारी क्या हो गई? रॉन्ग हो गई. B है k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. हर k पॉजिटिव जो है वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हमारे पास B ऑप्शन भी क्या है? रॉन्ग है. k ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, देखो यहां पे देखो, ये चीज k ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि जब k 6 से बड़ा है तो तीनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड है. तो इसका मतलब ये वाली ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी. तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. और जो डी ऑप्शन है k लेस देन इक्वल टू 6, वो भी हमारी रॉन्ग है, क्योंकि हर k जो 6 से छोटा है तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई नहीं करता.
Is it okay? So this was the question कि अगर नेगेटिव रूट्स हैं तो इसका मतलब बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन अ नंबर 0. तो हमने 3 कंडीशंस ली. रूट्स कैन बी इक्वल और डिस्टिंक्ट, तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. फिर उसका वर्टेक्स जो था -b/2a, यहां पे देखो, लुक हियर, ठीक है ना. तो ये -b/2a बेटा 0 से छोटा है. और तीसरा, ये ग्राफ आगे प्रोड्यूस होगा तो 0 पे जाके आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी. गॉट इट? नाउ लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन देखो, यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन. व्हाट डज इट से? द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ p फॉर विच द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² + 2x + p into p - 1 = 0 आर ऑफ अपोजिट साइंस. अब आप देख रहे हो फिर से इसमें एक अननोन है p और हमें गिवन है कि रूट अपोजिट साइंस के हैं. तो हमें बताना है कि p किस इंटरवल में लाई करेगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द सॉल्यूशन फॉर दिस वन. ऑलराइट, अब देखो कैसे करेंगे. पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं. वी हैव इक्वेशन 3x² + 2x + p into p - 1 = 0. ठीक है ना, ये इक्वेशन है हमारी. अब fx से डिनोट करते हैं लेफ्ट साइड वाले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को. तो लेट f of x be equal to 3x² + 2x + p into p - 1. मान लो ये हो गया. ऑलराइट, अब आप इसमें भी देखो x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना. कोफिशिएंट ऑफ x² इज पॉजिटिव, तो पैराबोला अपवर्ड ओपन करेगा. और रूट्स अपोजिट साइंस के हैं. अपोजिट साइंस का मतलब एक रूट नेगेटिव है तो दूसरा रूट पॉजिटिव होगा. राइट, तो एक ग्राफ बनाते हैं हम इसमें यहां पे रफ. ठीक है, तो लेट मी टेक यहां पे जस्ट अ मोमेंट. तो मान लो ये हमारी y एक्सिस हो गई बेटा, यहां पे ये x एक्सिस है. ठीक है, और यहां पे हमारा हो गया 0. अब पैराबोला अपवर्ड ओपन कर रहा है और रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइंस, तो पैराबोला हमारा कुछ ऐसे बनेगा. ठीक है ना, एक रूट हमारा नेगेटिव हो गया बेटा और एक रूट क्या हो गया? पॉजिटिव. अब देखो इस केस में रूट्स इक्वल नहीं हो सकते. रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइंस, तो रूट डिस्टिंक्ट होंगे. तो सबसे पहली कंडीशन हमारी जो आएगी दैट विल बी कि d स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि रूट्स डिस्टिंक्ट और रियल हो तो d स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा. लेट अस फाइंड d. ये देखो, ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. तो इसमें हम d निकाल लेते हैं. क्या आ गया देखो, वी हैव 2 2s are 4 -3 4s are 12 p into p - 1 is less than 0. लेट अस सॉल्व इट. पहले देखो 4 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो लेट अस डिवाइड दिस इनइक्वालिटी बाय 4. क्या आ गया हमारे पास? 1 - 3p into p - 1 is negative. Let's open the brackets. 1 - 3p² plus 3p नेगेटिव है. अब देखो याद है जब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी थी, आई टोल्ड यू कि जो लीडिंग टर्म है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव कर लो पहले, हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट. तो अभी देखो p² का कोफिशिएंट -3 है जो कि नेगेटिव है. लेट्स मेक इट पॉजिटिव. तो इस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं हम बाय -1. साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है ना, वी नो दैट. अब देखो इनइक्वालिटी क्या बन गई, वी हैव 3p² - 3p - 1 will be greater than 0. Now this is the inequality which we have to solve. अब देखो या तो फैक्टराइज करते हैं, है ना. अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, रूट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल लेंगे. तो लेट अस फाइंड द रूट्स ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल. तो पहले हम निकालते हैं इसके रूट्स. क्या आएगा देखो, p will be 3 + - 3 3s are 9 - 12 3 4s are 12 और डिवाइडेड बाय 6. तो दिस इज इक्वल टू 3 ± √21/6. अब आप नोटिस करो नंबर लाइन पे हमारे पास छोटा रूट है 3 - √21/6 और बड़ा रूट है 3 + √21/6. और अब इस इनइक्वालिटी को देखो, लुक एट दिस, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है. तो इसका मतलब p कैनॉट बी इक्वल टू आइदर 3 - √21/6 और 3 + √21/6. और उसके अलावा हमने प्लस माइनस प्लस लेके, क्योंकि इनइक्वालिटी में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो प्लस वाला हम रीजन लेंगे. इज इट ऑल राइट? ये हो जाएगा. सो आई हैव दिस थिंग दैट इज, एक मिनट, यहां पे हमारा ग्रेटर देन 0 था बेटा d, तो जब मल्टीप्लाई किया तो लेस देन 0 हो रहा है. ठीक है, तो लेट मी मेक दिस करेक्शन ओवर हेयर. तो यहां पे हमारा d था ग्रेटर देन 0, ये देखो. ठीक है ना, d ग्रेटर देन 0 था. तो जब मल्टीप्लाई किया है हमने
तो हमारे पास यहां पे क्या आ रहा है, लेस देन 0। लेस देन है तो हम माइनस वाला रीजन लेंगे यहां पे, ठीक है, नॉट प्लस बट माइनस। सो माइनस वाला रीजन लिया तो यहां पे ब्लैंक सर्कल थे और हमारे पास ये आ गया। तो पहली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन देखो क्या आ रहा है, 3 माइनस रूट 21 बाय 6 इज लेस देन p इज लेस देन 3 प्लस रूट 21 बाय 6। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट इनइक्वालिटी। इज इट ओके? हमारे पास ये आ गया। अब देखो सेकेंड कंडीशन इसमें क्या होगी, लेट अस सी। सेकेंड कंडीशन आपको याद होगा जब हम ये केस करते थे ना कि नंबर k लाइज बिटवीन द रूट्स, तो उसमें माइनस बी अपॉन 2a के ऊपर आपको याद होगा कोई कंडीशन नहीं थी, क्योंकि देखो पैराबोला का ये जो वर्टेक्स है ये 0 से पहले भी हो सकता है, 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। मतलब देखो पैराबोला 0 से पहले भी टर्न कर सकता है, ऐसे है ना, यहां पे इस तरह से इट कैन बी लाइक दिस, 0 पे भी टर्न कर सकता है एग्जैक्टली देखो अगर रूट्स अपोजिट साइन के हैं, और 0 के बाद भी टर्न कर सकता है। तो देर इज नो कंडीशन ऑन द टर्निंग पॉइंट। इज इट ऑल राइट? तो उसके ऊपर हमारी कोई भी कंडीशन नहीं होती है। तो अब जो नेक्स्ट हमारी कंडीशन आएगी वो किसके ऊपर आएगी, यहां पे कि 0 पे देखो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। लुक हियर, जब हमारे पास x की वैल्यू अल्फा बीटा के बीच में है, आप नोटिस करो बेटा ग्राफ कहां है, बिलो x एक्सिस। तो पर्टिकुलरली 0 पे फंक्शन की वैल्यू आप देखो f ऑफ 0 क्या हो गई, नेगेटिव। तो सेकेंड कंडीशन इज दैट f of 0 will be less than 0। अब हमारे पास फंक्शन ये है, दिस इज द फंक्शन, तो x0 ये भी x0, तो f of 0 कितना हो गया, p into p minus 1। So in the second condition I have p into p minus 1 is less than 0। अब देखो ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, इसका रूट 0, इसका रूट 1। तो नंबर लाइन पे लेते हैं बेटा, दिस इज 0, दिस इज 1। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो ब्लैंक सर्कल्स आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगेन लुक एट द इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है तो माइनस वाला रीजन लेना है 0 to 1। तो अब p बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर 1। तो दिस इज द सेकेंड इनइक्वालिटी। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द कॉमन सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें दो ही कंडीशंस होती हैं। याद है ये केस 4 था जब अ नंबर k लाइज बिटवीन द रूट्स। तो पहली हमारे पास इनइक्वालिटी ये है और दूसरी है। अब देखो नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पता होनी चाहिए ना, क्योंकि दूसरे दो रूट्स क्या हैं, 0 और 1। तो हमें देखना है ये नंबर 0 और 1 के रिलेटिवली कहाँ लाई कर रहे हैं। अब रूट 21 देखो, रूट 21 कितना होगा आपका, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 के करीब ले लो, राइट, बिकॉज सॉरी 4.5। 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, अप्रॉक्सीमेटली 4.5 अगर हम लेते हैं तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी बनी देखो, दिस वुड बी 3 माइनस 4.5 and divided by 6, that means minus 1.5 by 6, मतलब approximately minus 0.25। और ये वाली वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आएगी ये हमें कैलकुलेट करना होता है, 3 प्लस 4.5 7.5 by 6, तो अप्रॉक्सीमेटली हो गई 1.25। तो 0 से पहले है 3 माइनस रूट 21 बाय 6 और 1 से आगे है 3 प्लस रूट 21 बाय 6। तो नाउ वी आर रेडी टू टेक द कॉमन सोल्यूशन। हमें आइडिया है आपकी कहां पे लाई कर रहे हैं बेटा रूट्स। तो देखो यहां पे जैसे ये 0 ये 1, तो 3 माइनस रूट 21 बाय 6 इज गोइंग टू लाई हेयर, ये यहां पे लाई करेगा, करेगा ना, और 1 के बाद लाई करेगा 3 प्लस रूट 21 बाय 6। अब देखो यहां पे पहली कंडीशन p इनके बीच में है, दूसरी कंडीशन 0 से 1 के बीच में है। तो पहली कंडीशन ये थी और दूसरी कंडीशन ये है, तो कॉमन सोल्यूशन क्या हो गया, जिसके ऊपर डबल लाइन है, दैट मीन 0 to 1। तो सोल्यूशन विल बी दैट p शुड बिलोंग टू द इंटरवल 0 to 1। ठीक है ना, तो ये हमारा इंटरवल है बेटा जिसमें p लाई कर रहा है, अगर हमें दिया है कि रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइंस। तो लेट्स चेक द ऑप्शन। तो p is belonging to 0 to 1, that means b option will be correct over here। ठीक है ना, तो b ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर रूट्स अपोजिट साइन के हैं इट मींस दैट 0 लाइज बिटवीन द रूट्स। तो दो कंडीशन होंगी, एक d स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 बिकॉज रूट्स कैन नॉट बी इक्वल, और दूसरा कि 0 पे क्योंकि पैराबोला अपवर्ड है तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव।
ऑलराइट, तो जो हमने लोकेशन ऑफ रूट्स के केसेस किए थे बेटा, वो अगर हमें ये चीजें दी होती हैं कि रूट्स पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, अपोजिट साइन के हैं, तो वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। ऑलराइट, अब देखो उसके बाद थोड़ा सा इसमें थ्योरी पार्ट में आगे चलते हैं। अब जब हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना बेटा, उसमें जो वेरिएबल होता है कई बारी वो डायरेक्टली नहीं दिया होता, समटाइम्स इट इज अंडर मॉडुलस साइन, कई बारी वो वेरिएबल स्क्वायर रूट साइन के अंदर होता है, कई बारी लॉग में होता है, कई बारी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर होता है, कई बारी एक्सपोनेंट में होता है। तो वो अब हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा हम उनके ये जो बेसिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन रेंज देख लेते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक ये रहेगा कि हमारे पास अगर ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन्वॉल्विंग, जिनमें हमारे ये इन्वॉल्व होते हैं बेटा क्या क्या, मॉड एक्स, जिंट ऑफ एक्स, राइट, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, या फिर ए रेस पर एक्स कह लो, या फिर लॉग ऑफ एक्स। ऑलराइट, तो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल ऐसे हो तो हमने किन बातों का ध्यान रखना है, लेट अस सी। अब देखो सबसे पहले यहां पे अगर हम मॉडुलस फंक्शन की बात करें, ठीक है, बिल्कुल क्विकली इसको रिवाइज करेंगे सो दैट वी आर एबल टू डू द क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है, ताकि उसमें किन बातों का हम ख्याल रखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते टाइम। अब आपको पता है मॉडुलस फंक्शन जैसे हम लेते हैं fx इज इक्वल टू मॉड एक्स, इसको हमने डिफाइन किया हुआ है ना, आई होप यू रिमेंबर। इट इज माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव, क्योंकि अगर एक्स नेगेटिव है बेटा तो पॉजिटिव करने के लिए उसके आगे हमें माइनस लगाना पड़ता है। जैसे -2 नेगेटिव है तो -2 के आगे माइनस लगाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर एक्स 0 या 0 से बड़ा होता है तो मॉड के अंदर वाली वैल्यू एज इट इज बाहर आती है। इसका आपको ग्राफ भी याद होगा, ठीक है, कि अगर हमारे पास इसका हमने अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, वी शेप ग्राफ, ठीक है ना, जिसमें अगर x नेगेटिव है तो यहां पे ये लाइन है y इक्वल टू -x और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में y इक्वल टू x। अब देखो इसकी यहां पे डोमेन रेंज भी देखते हैं। डोमेन का मतलब होता है वैल्यूज दैट x कैन टेक, या लेफ्ट टू राइट x एक्सिस के अलोंग ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो x नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 सारी वैल्यूज ले रहा है तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। रेंज का मतलब सेट ऑफ वैल्यूज विच y कैन टेक, जैसे fx को हमने y से डिनोट किया है। y जो वैल्यूज ले रहा है मतलब ग्राफ बॉटम टू टॉप कहां से कहां तक जा रहा है अलोंग y एक्सिस। तो बॉटम टू टॉप आप देख रहे हो y नेगेटिव तो कभी होगा ही नहीं, मॉड लेने के बाद तो वो पॉजिटिव हो जाता है, या 0 को मॉड 0 होता है। तो आप देखो ये जो मैंने रेड से मॉड का ग्राफ बनाया है इसमें y 0 से इंफिनिटी वैल्यू ले रहा है तो रेंज विल बी 0 टू इंफिनिटी। इसी तरह से अगला लेते हैं, मान लो सेकेंड, लेट मी टेक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऑलराइट, इसका थोड़ा सा बस हम आइडिया लेंगे ताकि अगर हमें क्वेश्चन करना है तो हमें पता हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब fx इज इक्वल टू, आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट डाल के x लिखते हैं, वेयर दिस शॉर्ट फॉर्म में जिंट ऑफ x बोल देते हैं, g ग्रेटेस्ट का g ले लेते हैं, सॉरी ये देखो ग्रेटेस्ट का g ले लेते हैं, इंटीजर का int, तो शॉर्ट फॉर्म में जिंट ऑफ x बोल देते हैं। तो वेयर जिंट ऑफ x मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x, राइट, सबसे बड़ा इंटीजर पर उससे बड़ा नहीं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x, राइट। अब इसका ग्राफ देखो इस तरह से था कुछ, इफ वी ट्राई टू सी द ग्राफ, तो इसका ग्राफ हमारा जैसे हमारे पास 0, राइट, 1 2 3, यहां पे है 1 2, राइट, -1 -2 -1 -2। अब देखो जब x वैल्यूज ले रहा है 0 या 0 से बड़ी तो उसका जेंट क्या होगा, 0 होगा बेटा, ये हो जाएगा। 1 पे वैल्यू 0 नहीं आएगी जेंट की, क्योंकि 1 का जेंट 1 होता है। 1 से 2 के बीच में जब x है तो y की वैल्यू 1 रहेगी। जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, 3 से छोटी, तो उन नंबर्स का जेंट कितना होता है, 2 होता है। जब x आपका -1 से 0 है तो y की वैल्यू मतलब जेंट ऑफ x विल बी -1। व्हेन x लाइज बिटवीन -2 to 1 तो इट विल बी y की वैल्यू मतलब उसका जेंट कितना होगा, -2, राइट। नाउ व्हाट इज द डोमेन,
डोमेन मीन्स अगेन सेट ऑफ वैल्यूज दैट x कैन टेक, x सारी वैल्यूज ले रहा है तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। और अगर हम यहां पे रेंज की बात करते हैं तो y कैसी वैल्यूज ले रहा है, इंटीग्रल वैल्यूज ले रहा है, तो रेंज विल बी सेट ऑफ इंटीजर्स। ऑलराइट, नाउ लुक एट द थर्ड वन, स्क्वायर रूट फंक्शन देखते हैं कि कभी इसके ऊपर आ जाए हमारा क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन तो हमें यह पता होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन। अब स्क्वायर रूट फंक्शन नाम से ही पता चलता है इट वुड बी इक्वल टू fx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। देखो ये फंक्शन नहीं होता, ये आपने डेफिनेशन ऑफ फंक्शन से इसको रिलेट कर सकते हो कि एक अगर आपके पास डोमेन में कोई नंबर है या कोई वेरिएबल है उसकी एक यूनिक वैल्यू होती है। अगर प्लस माइनस रूट एक्स ले लोगे तो फॉर वन वैल्यू ऑफ एक्स यू विल हैव टू इमेजेस, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। तो खाली हम अंडर रूट ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं। अब आप नोटिस करो कि यहां पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। ग्राफ बनाने के लिए अगर आपने fx को बेटा y से डिनोट कर दिया, एक तो आपको पता है अगर हम रियल नंबर्स में डील कर रहे हैं तो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव नहीं ना हो सकती। तो एक तो कंडीशन आपकी x के ऊपर है कि x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऊपर से देखो यहां पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो y भी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता क्योंकि राइट साइड पॉजिटिव है, तो y के ऊपर भी यही कंडीशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो वो कुछ इस तरह से बेटा बनता है, जैसे ये हमारे पास हो गई कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ग्राफ वुड बी समवट लाइक दिस। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। तो आप देख सकते हो इसकी डोमेन क्या होती है, क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, x 0 से या 0 से बड़ा है, और इसी तरह रेंज y भी वैल्यूज कैसी ले रहा है, 0 या 0 से बड़ी। इज इट ऑल राइट? एक और देख लेते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, वो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बाकी तो ये डिटेल में जब हम फंक्शंस करते हैं बेटा तो सारी चीजें करते हैं, पर थोड़ा सा क्वाड्रेटिक में हमें बेसिक कुछ फंक्शंस की नॉलेज होनी जरूरी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, जैसे हम कहते हैं fx इज इक्वल टू a रेस पर x। अब देखो इसमें ना दो केसेस होते हैं, या तो हमारा a 0 से 1 के बीच में होता है या a 1 से बड़ा होता है, जिसको हम बेस कहते हैं, है ना, a को बेस कहते हैं। अब क्या होता है जब हम a को 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं और अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहो y इज इक्वल टू a रेस पर x का, तो आप में से कईयों को याद होगा, नहीं तो फंक्शंस में आप इसको रिवाइज करो। ये ग्राफ बेटा कुछ ऐसे जाएगा, ग्राफ इज समवट लाइक दिस, डिक्रीजिंग होता है, पर x की कोई भी वैल्यू लो तो y कभी नेगेटिव नहीं होता। और अगर आपका a 1 से बड़ा है, ठीक है, तब इसका ग्राफ देखो कैसा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जैसे आपके पास यहां पे ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है बेटा। इसमें भी ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहता है, एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, चाहे आपकी बेस 0 से 1 के बीच में है, ऑलराइट, या फिर 1 से बड़ी है। तो दोनों ही केसेस में ना डोमेन रेंज सेम रहते हैं। देखो दोनों में x कोई भी वैल्यू ले रहा है तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, और रेंज कितनी होती है, ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। मतलब a रेस पर x हमेशा पॉजिटिव होता है, ना 0 होता है ना नेगेटिव होता है। तो ये हमें जो इंफॉर्मेशन है ना कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज यूज्ड इन मेनी क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। बस फर्क क्या होता है, इस केस में, पहले केस में आपका जो फंक्शन है वो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट, और दूसरे केस में जब बेस 1 से बड़ी है तो आप देख रहे हो जैसे जैसे x बढ़ रहा है ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो इन दिस केस इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ऑलराइट, लेट अस सी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डन। ठीक है, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं जिनमें हमारे पास वेरिएबल्स या तो जिंट में है, मॉड में है, स्क्वायर रूट में है या एक्सपोनेंट में है, राइट। लुक एट दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो जरा ऑन योर स्क्रीन। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी इट केयरफुली। लेट दिस सिंबल डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू t। तो आपको ये इक्वेशन दी है x में, अब देख रहे हो जो वेरिएबल है वो जिंट के अंदर है, जिंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स जिंट ऑफ x प्लस 2 माइनस 7 इक्वल टू 0। आपको बताना है इसके सॉल्यूशंस, मतलब कितने रूट्स होंगे, इनफाइनाइटली मेनी होंगे, एग्जैक्टली 4 इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, कोई भी नहीं होगा, या एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस होंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो नाउ वी आर गोइंग टू डू द सोल्यूशन फॉर दिस, और आप देख सकते हो ये जेईई मेंस 2020 का हमारा क्वेश्चन है। ऑलराइट, नाउ इसमें इक्वेशन क्या दी है देखो, जिंट ऑफ x का स्क्वायर
plus 2 times gent of x plus 2 and minus 7 equal to 0. सबसे पहले यहां पे इस टर्म को देखो, इसमें ना जेंट की एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी. क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास जेंट ऑफ x और हमारे पास प्लस n है, ठीक है, वेयर n इज एनी इंटीजर. n क्या है बेटा? हमारा कोई इंटीजर है, तो आपका n जो है ना वो जेंट के बाहर आ सकता है. मतलब इसको लिख सकते हैं जेंट ऑफ x प्लस n. x कोई भी रियल नंबर हो सकता है. n अगर आपका इंटीजर है, इट कैन बी टेकन आउटसाइड द जेंट. ऑलराइट, तो यहां पे देखो सबसे पहले हम यही करते हैं, इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं. तो हमें क्या मिला? दिस इज जेंट ऑफ x का स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 टाइम्स 2 को जेंट के बाहर ले आओ, जेंट ऑफ x प्लस 2 एंड माइनस 7 इज इक्वल टू 0. अब पता है एक काम करते हैं, सॉल्व करने के लिए यहां पे जेंट ऑफ x को लेट अस टेक टू बी इक्वल टू से t. मान लो t मान लेते हैं, तो एक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, लेट जेंट ऑफ x बी इक्वल टू t. तो पहले t की टर्म्स में क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं, बाद में जेंट की वैल्यू देख लेंगे. तो इक्वेशन क्या बन गई? t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 माइनस 7 इज इक्वल टू 0. सो वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन t स्क्वायर प्लस 2t एंड माइनस 3 इज 0. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. अब इसको सॉल्व करते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ओके, लेट्स डू इट. सो हाउ डू वी स्प्लिट द मिडिल टर्म? t स्क्वायर प्लस 3t माइनस t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, है ना. अब देखो यहां पे पहली दो टर्म्स में t कॉमन लो, हमारे पास आ गया t प्लस 3 एंड माइनस t प्लस 3 इज इक्वल टू 0. राइट, नाउ एक फैक्टर आया t प्लस 3, व्हाट इज द अदर फैक्टर? t माइनस 1. राइट, अब सिंपल है, इसको 0 पुट किया और इसको किया, तो t की दो वैल्यूज हमारे पास क्या क्या आ गई? माइनस 3 और 1. अब देखो जेंट ऑफ x की बात हो रही है, इज इट ऑल राइट? यहां पे जेंट ऑफ x, इसका मतलब या तो हमारे पास है माइनस 3 या फिर जेंट ऑफ x की वैल्यू कितनी है? यहां पे 1. तो आइदर इट इज माइनस 3 और इट इज 1. अब हमें तो x निकालना है ना. देखो जब हम ये कहते हैं कि सॉल्यूशन बताओ, इक्वेशन किस में है? इक्वेशन x में है, तो आपने देखना है x क्या क्या वैल्यूज ले रहा है, नॉट जेंट ऑफ x. ऑलराइट, तो अगर जेंट ऑफ x माइनस 3 है तो देखते हैं x कहां कहां लाई कर सकता है, x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है. नंबर लाइन पे देखो, जैसे 0 1 2 माइनस 1, राइट, माइनस 2 माइनस 3 एंड सो ऑन. अब हम देखते हैं किन किन नंबर्स का जेंट माइनस 3 होगा. ठीक है, अब देखो माइनस 3 का होगा, और एक जैसे माइनस 2.3 माइनस 2.1 आगे तो जाना नहीं होता, तो इन सब नंबर्स का जेंट होगा माइनस 3. अब जेंट 1 कब कब बनेगा? जब x आपका 1 या 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है. तो हमारे पास क्या आ गया? देखो, या तो x आपका माइनस 3 या 3 से बड़ा है एंड लेस देन माइनस 2, या फिर x 1 या 1 से बड़ा है एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 2. तो x बेटा ये वाली वैल्यूज ले रहा है. ये सारी वैल्यूज हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं. अब क्यों ना हम ऑप्शंस चेक करें. अब आप इसमें देखो, उससे पहले हम एक चीज नोट करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में ना वो कुछ इंटीग्रल सॉल्यूशंस की भी बात कर रहे थे. ये देखो, इंटीग्रल सॉल्यूशंस की भी कुछ बात हो रही है. तो हम पहले ये देख लेते हैं कितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं. अब इंटीजर्स कौन कौन से हैं जो x ले रहा है वैल्यू? माइनस 3 और 1. तो अगर हम इंटीग्रल सॉल्यूशंस अगर हमें पूछे गए हैं, तो इंटीग्रल सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो x इज आइदर माइनस 3 और 1. तो दो इंटीग्रल सॉल्यूशंस हुए, बाकी नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं पर हैं रियल. तो ऑप्शंस चेक करते हैं. तो हमारे पास एग्जैक्टली 4 इंटीग्रल सॉल्यूशंस जहां पे लिखा है वो बात गलत है. फिर नो इंटीग्रल सॉल्यूशन भी गलत है, क्योंकि हमारे 2 इंटीग्रल सॉल्यूशंस आ रहे हैं. फिर अब देखो एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस भी रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली 2 तो इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं,
These are two integral solutions. बाकी के solutions तो ये सारे हैं नॉन इंटीग्रल, तो इसका मतलब वो नॉन इंटीजर्स हैं पर हैं तो रियल नंबर्स, और वो कितने वैल्यूज हैं x की? इनफाइनाइटली मेनी। -3 और -2 के बीच में आपके पास इनफाइनाइटली रियल नंबर्स हैं, और ये +1 और 2 के बीच में भी बेटा इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सी है? ए है यहाँ पे। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट दैट इट हैज गॉट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, राइट। तो हमारा जो वेरिएबल था वो जिंट के अंदर था, उसमें एक हमने ये प्रॉपर्टी यूज करी है और उसके बाद उसको सॉल्व किया। गॉट इट? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन पे। अब इसमें मॉड की भी बात हो रही है बेटा और एक्सपोनेंट की भी बात हो रही है। आप देख रहे हो क्वेश्चन क्या है? लेट अस रीड। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स। तो एक तो वो रियल रूट्स की बात कर रहे हैं ऑफ दिस इक्वेशन। अब आप इस इक्वेशन में देखो x आपका पावर में है, एक्सपोनेंट में है ना, और यहां पे मॉड भी आपको दिख रहा होगा राइट साइड पे। इज इट ओके? तो आपको बताना है कि अगर सेट ऑफ रियल सॉल्यूशंस S है तो S सिंगलटन सेट है, एम्प्टी सेट है, उसमें कम से कम 4 एलिमेंट्स हैं, एटलीस्ट 4 या एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। एंड यू कैन सी दिस क्वेश्चन वाज अगेन इन JEE Mains 2020. Let's see how to solve it. All right. So now we are going to do the solution for this one. Let me write the equation. क्या equation है देखो? 3 raised power x into 3 raised power x minus 1 plus 2 is equal to mod of 3 की power x minus 1 plus mod of 3 की power x minus 2. This is the equation now. एक काम करते हैं यहाँ पे, आसान करने के लिए ना पहले हम एक सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं। मान लो 3 रेस पावर एक्स टी के इक्वल है, तो बार बार एक तो 3 रेस पावर एक्स लिखना नहीं पड़ेगा और सॉल्व करना भी इजी हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये हमारे पास है। अब इक्वेशन क्या बनी? t इंटू टी माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ t माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ t माइनस 2। ये इक्वेशन है। दिस इज द नाउ इक्वेशन विच वी हैव टू सॉल्व। अब आप देख रहे हो यहां पे 2 मॉड्स हैं, तो लीनियर इनइक्वालिटीज में जब हमने मॉडुलस की इनइक्वालिटीज करी थी, आपको याद होगा हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे जिनमें एक से ज्यादा मॉड है। तो मैंने आपको बोला था मॉड की डेफिनेशन यूज करके उनको पीसवाइज डिफाइन करना पड़ता है। अब जैसे मॉड t माइनस 1 है, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा कि अगर आपका t माइनस 1 नेगेटिव है तो वो माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, और अगर t माइनस 1 मॉड के अंदर वाली वैल्यू आपकी 0 या 0 से बड़ी है तो याद है ना वो एज इट इज बाहर आती है। अब देखो इसका मतलब क्या है? t माइनस 1 नेगेटिव का मतलब है t इज लेस देन 1, और t माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब है t 1 या 1 से बड़ा। दैट मीन्स कि अगर t 1 से छोटा है तो मॉड t माइनस 1 इससे रिप्लेस होगा, अगर t 1 या 1 से बड़ा है तो वो इससे रिप्लेस करेंगे। सिमिलरली लेट अस डिफाइन पीसवाइज मॉड t माइनस 2। तो इट विल बी माइनस ऑफ t माइनस 2 when t minus 2 is negative, that is when t is less than 2, and it will come out as it is if t minus 2 is greater than or equal to 0, that is if t is greater than or equal to 2. So again what it means कि अगर t is lesser than 2, अगर t 2 से छोटा है तो मॉड इससे रिप्लेस होगा बच्चे, और अगर t 2 या 2 से बड़ा है तो मॉड t माइनस 2 इससे रिप्लेस होगा। एक चीज और नोटिस करो, हमने t को क्या लिया है? 3 रेस पर x। अभी अभी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन किया जिसमें मैंने आपको बताया बेस चाहे 0 से 1 के बीच में है या 1 से बड़ी है, a रेस पर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर था। तो यहां से हमें यह बात भी पता चल रही है, क्या बात पता चल रही है कि t इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 यहां पे, क्योंकि 3 रेस पर x है। अब आप देखो जरा, हम नंबर लाइन अगर देखते हैं तो 0, 1 और 2 की बात हो रही है, तो हमारी नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक केस ये लेना पड़ेगा जब t 0 से 1 है, क्योंकि t 0 से छोटा तो है ही नहीं, तो ये वाला पार्ट तो लेना ही नहीं है। फिर लेंगे t 1 या 1 से बड़ा है पर 2 से छोटा है, और तीसरा केस होगा जब t 2 या 2 से बड़ा है।
सो देर किस बात की है, स्टार्ट करते हैं. लेट अस टेक केस 1. ठीक है, केस 1 क्या ले रहे हैं बेटा, t बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 से 1, मतलब 0 से तो बड़ा है t पर 1 से छोटा है. अब देखो हमारी इक्वेशन क्या थी t की टर्म्स में, ये इक्वेशन थी ना, इसको मैं लिखती हूं जरा दोबारा. ठीक है, t इंटू टी माइनस 1 प्लस 2, t इंटू टी माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू मॉड t माइनस 1 प्लस मॉड t माइनस 2. तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, यही है ना, देखो t इंटू टी माइनस 1 प्लस 2. यस. अब आप देखो जब हम इस इंटरवल में हैं 0 से 1 के बीच में, तो हम 1 से पीछे हैं, तो t माइनस 1 को किससे रिप्लेस करना था, लुक हियर, इससे, माइनस वाले से, और t मॉड t माइनस 2 को भी इससे, तो रिप्लेस कर दो. यहां पे इक्वेशन बन गई, यहां पे t स्क्वायर माइनस t प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ t माइनस 1 माइनस ऑफ t माइनस 2. लेट्स सिंप्लीफाई. t स्क्वायर माइनस t प्लस 2 इज हाउ मच, माइनस t प्लस 1 माइनस t प्लस 2. एक माइनस t कैंसिल हो गया हमारा. ठीक है, ये देखो ये वाला, और एक 2 भी कैंसिल कर दो, तो इक्वेशन क्या आ गई, t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास इक्वेशन है. इसको सॉल्व करते हैं. मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगी इसमें बेटा, वी हैव टू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो इट विल बी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 2. अब पता है ये दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू है रूट 5 माइनस 1 बाय 2 और एक वैल्यू है रूट 5 प्लस 1 बाय 2. अब देखो ये केस कौन सा था, जब t 0 से 1 के बीच में है, तो हम वही t की वैल्यू ले सकते हैं जो 0 से 1 के बीच में है. रूट 5 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 2.3. तो ये वाला रूट देखो पहले, 2.3 माइनस 1 कितना 1.3, 1.3 बाय 2 अप्रोक्सीमेटली 0.6 के करीब होगा. तो इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है इंटरवल 0 से 1 में, तो इसको लेना है. अब दूसरे वाला जो है आपका, सॉरी दूसरा रूट हमारा यहां पे ये है, सेकेंड रूट हेयर इज माइनस रूट 5 माइनस 1 बाय 2. आप देख रहे हो ये तो नेगेटिव है, तो ये तो 0 से 1 के बीच में लाई करता ही नहीं है. तो इसका मतलब केस 1 में हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है, और ये किसकी वैल्यू है, t की वैल्यू है. रिमेंबर t हमारा क्या था, 3 रेज पावर x, यही सब्स्टिट्यूशन ली थी ना हमने. तो 3 रेज पावर x इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 बाय 2. अब यहां से x कैसे निकालोगे, लॉग की डेफिनेशन से, याद है ना, अगर a रेज पावर x m होता है तो x क्या होता है, log m टू द बेस a. ठीक है, सो अगर पावर में x होता है बेटा, तो x निकालने के लिए यू हैव टू यूज डेफिनेशन ऑफ लॉग. तो यहां से एक सोल्यूशन आ गया, log टू द बेस 3 रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा. तो एक सोल्यूशन हमारा ये हो गया. ठीक है, जो कि हमें किससे मिला, केस 1 से. आप देखो हम करते हैं केस 2. ऑलराइट, लेट मी टेक नाउ केस 2. केस 2 क्या था, जब t 1 या 1 से बड़ा है एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 2, मतलब t बिलोंग कर रहा है बेटा क्लोज्ड इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 2. फिर से एक बार इक्वेशन लिखते हैं, क्या थी, देखो t इंटू टी माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ t माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ t माइनस 2, यही थी ना. अब आप नोटिस करो t 1 से बड़ा हो गया है, ठीक है ना, 1 से बड़ा है, तो मॉड t माइनस 1 तो किससे रिप्लेस होगा, प्लस वाले केस से. लेकिन आप नोटिस करो t अभी 2 से पीछे है, 2 से छोटा है, तो ये किससे रिप्लेस होगा, माइनस ऑफ t माइनस 2 से, बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड. तो करते हैं, ये हो गया t स्क्वायर, ठीक है, माइनस t प्लस 2, और राइट साइड देखो विल बी इक्वल टू t माइनस 1 और माइनस t प्लस 2. अब क्या आ गया देखो, एक तो ये t माइनस t कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया. आई एम गेटिंग t स्क्वायर माइनस t एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इज इट ओके, ये हमारे पास इक्वेशन आई. अब इसको सॉल्व करना है, मिडिल टर्म ने स्प्लिट होगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, तो t हो गया 1
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना आया देखो 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पे नोटिस करो रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ गई, तो यहां पे नो रियल रूट्स, यहां पे बेटा हमारे रूट्स नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो किसकी बात कर रहे थे देखो क्वेश्चन में, दे वर टॉकिंग अबाउट रियल रूट्स, है ना, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। अब थर्ड केस क्या था देखो, ये वाला जब हम 2 या 2 से आगे हैं, तो लेट मी टेक नाउ केस 3। सो केस 3 was when t is greater than or equal to 2। इसका मतलब t बिलोंग कर रहा है बेटा किसको, क्लोज्ड इंटरवल 2 से लेकर इंफिनिटी, इसको बिलोंग कर रहा है। अब इस केस में क्या होगा देखो, हमारे पास इक्वेशन फिर से लिखते हैं, इट वॉज व्हाट, t इंटू टी माइनस 1 प्लस 2 was equal to mod of t minus 1 plus mod of t minus 2। अब देखो जब आप नंबर लाइन पे 2 या 2 से आगे चले गए तो 1 से तो आगे चले ही गए ना, तो इसका मतलब ये भी रिप्लेस होगा प्लस वाले केस से और ये भी प्लस वाले केस से। तो लेट्स फॉर्म द इक्वेशन नाउ। अब ये इक्वेशन क्या बनी, टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 2 इज इक्वल टू टी माइनस 1 प्लस टी माइनस 2। अब इसको देखो, ये दोनों t इधर ले आओ, तो टी स्क्वेयर माइनस 3t और प्लस 5 इक्वल टू 0 is the new quadratic equation. Let's solve it. Again, not possible to split the middle term. Let's use the quadratic formula. So t is equal to 3 plus minus under root of 9 minus 5 4s are 20 divided by 2. Oops, फिर से रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी, तो अगेन नो रियल रूट्स, ठीक है ना, तो यहां पे हमारे पास नो रियल रूट्स। तो तीनों केसेस हमने कवर कर लिए, तो हमें सोल्यूशन सिर्फ एक मिला है देखो, ओनली वन सोल्यूशन ये वाला, ठीक है। सो वी हैव गॉट ओनली वन सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। लेट्स चेक द ऑप्शंस नाउ। तो ये देखो यहाँ पे, तो S was the set of solutions, ठीक है ना, ये देखो S is the set of real roots, तो it is a singleton set containing just one element, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही रूट निकला है। Got it? समझ में आ गया बेटा? Alright? So that is how we solve this equation. एक और क्वेश्चन लेते हैं हम अगला। Look at this question on your screen now. अब इसमें आपका x बेस में भी है और पावर में भी है, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी हमारा जेईई मेंस 2016 में आया हुआ है। लुक एट दिस क्वेश्चन, सम, इसमें क्या चाहिए देखो, हमें सम चाहिए। जो ये ऐसी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें होती है ना कि रियल है, सम है, उनको ना हाईलाइट कर लेना चाहिए या अंडरलाइन कर लेना चाहिए, ताकि जब हम फाइनल आंसर दे रहे हैं ना बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो कई बार जल्दबाजी में हम सिर्फ एक्स की वैल्यू बता देते हैं अगर वो बाय चांस मैच कर रही है। ये भूल जाते हैं कि प्रोडक्ट पूछा है, सम पूछा है, रियल था, नॉन रियल था, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो दी स्मॉल लिटिल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इनको कंसिडर नहीं करेंगे तो गलत ऑप्शन टिक हो जाएगी। ऑलराइट, अब देखो इक्वेशन क्या है, ठीक है। सो लेट्स डू द सॉल्यूशन फॉर दिस वन। इक्वेशन मेरे पास ये है, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 5, ठीक है, होल पावर एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 1। अब देखो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है। आप ये सोचोगे इसमें कि राइट साइड 1 कब बनेगी, क्या ले कि 1 बने। पहला केस हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, केस 1, कि कोई भी नंबर की पावर 0 ले तो 1 होता है ना, तो मतलब बेस कुछ भी हो पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। बेस कैन बी एनीथिंग, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, तो इसका मतलब पावर अगर हमारे पास 0 है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो पावर है क्या देखो, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 60, तो ये 0 होनी चाहिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो बेटा, एक्स स्क्वेयर प्लस 10x माइनस 6x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में x कॉमन, x प्लस 10 माइनस 6x प्लस 10 is equal to 0. Let's factorize. So we have two factors, x plus 10
x माइनस 6 0। तो x की क्या वैल्यूज आ गई देखो, -10 और 6, राइट। तो दो वैल्यूज तो ये हैं जिनके लिए हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। फिर दूसरा केस हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि राइट साइड 1 कब बनेगी, कि 1 की पावर अगर आप कुछ भी लेते हो तो 1 होता है ना, 1 की पावर कुछ भी ले लें तो हमारे पास 1 ही आता है। तो इसका मतलब अगर बेस 1 के इक्वल हो जाए और पावर कुछ भी हो जाए तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो लेट अस टेक, बेस कितनी है देखो, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, ये देख रहे हो, दिस इज द बेस, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। तो लेट मी टेक, तो आई हैव x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो वी गेट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की क्या वैल्यूज आ गई देखो, 1 और 4। तो इन वैल्यूज के लिए भी हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड है। क्या यही दो केस होते हैं कि राइट साइड 1 बने? ये वाली जो पूरी हमारी इक्वेशन है, दिस वन, क्या इन्हीं दो केसेस में राइट साइड 1 बनेगी? एक केस और है, ये केस इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर बच्चे ना गलती ये करते हैं कि केस 3 लेना भूल जाते हैं। क्या है वो केस? लुक हियर, थर्ड केस हमारा ये है यहां पे, केस 3, कि अगर आपके पास बेस पे -1 है और इवन पावर है ना, बेस -1 हो और पावर इवन हो, तब भी हमारे पास क्या बनता है, 1 बनता है। तो इसका मतलब इसमें हमारे पास बेस पे भी कंडीशन है और पावर पे भी है। तो बेस हमारी होनी चाहिए इक्वल टू -1 एंड आवर पावर शुड बी इवन। इज इट ऑल राइट? तो पहले बेस को -1 लेते हैं। बेस हमारा क्या था, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, दिस इज इक्वल टू -1। लेट अस सॉल्व दिस फर्स्ट। सो वी आर गेटिंग x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करोगे क्या आ जाएगा, x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो वी आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ x, व्हाट आर दे, 2 and 3। अब हमें देखो इनके लिए चेक करना है कि पावर इवन है या नहीं है। तो चेक करते हैं, यहां पे देखो, अगर हमारे पास मान लो x2 है तो पावर चेक करते हैं। पावर क्या थी, लेट्स सी, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60। ऑल राइट, तो पावर इज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, यही थी ना। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। अब इसमें पुट करो x की वैल्यू 2, तो वी हैव 4 प्लस 2 4 ज़ा 8 एंड माइनस 60। कितना आ गया देखो, 12 माइनस 60, दैट इज माइनस 48 विच इज इवन। तो दैट मीन्स x कैन बी 2, ये भी हमारा रूट आ गया। सेकेंड चेक करते हैं, जब हमारे पास x की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 है, ठीक है। जब x 3 है तो देखो तब पावर क्या आ रही है, पावर इज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60। तो ये कितना हुआ देखो, 9 प्लस 12 माइनस 60, दैट इज 21 माइनस 60 विच इज इक्वल टू माइनस 39 विच इज नॉट इवन। तो दैट मीन्स दिस केस वुड बी रिजेक्टेड। अब सारे केसेस हमने ले लिए। राइट साइड 1 कब कब बन सकती है बेटा, या तो पावर 0 हो जाए, या बेस 1 हो जाए, या बेस -1 हो और पावर इवन। अब हमें चाहिए क्या था देखो, सम ऑफ रूट्स। वी रिक्वायर सम ऑफ रूट्स। तो क्या क्या रूट्स आए हैं देखो, -10 है ना, 6 1 4 एंड 1 मोर रूट दैट इज दिस 2। तो इनका सम निकालते हैं। तो लेट अस नाउ फाइंड सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो क्या क्या थे, -10 6 1 4 और फिर 2। तो हाउ मच इज दिस, 3। इज इट ओके? सो वी आर गेटिंग सम ऑफ रूट्स एज 3। तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। तो चेक करते हैं ऑप्शन। ठीक है, सम ऑफ रूट्स चाहिए था देखो 3, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो हमारी ए ऑप्शन बेटा इस केस में क्या हो गई, करेक्ट हो गई। ठीक है।
तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ दिस. तो आज देखो, लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव डन. एक तो मैंने आपको कल जो हमने पिछले लेक्चर में जो हमने लोकेशन ऑफ रियल रूट्स कहा था, उसको हमने थोड़ा सा आज यूज किया. कैसे कि इफ बोथ रूट्स आर नेगेटिव दैट मीन्स बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन 0. इफ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव दैट मीन्स बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0. इफ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइंस दैट मीन्स 0 लाइज बिटवीन द रूट्स. एंड वी डिड सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट. और वही लोकेशन ऑफ रियल रूट्स के हमने केसेस देखे, इनइक्वालिटीज बनाई और उनका कॉमन सोल्यूशन लिया. फिर आई टोल्ड यू कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट नहीं है, उसमें वेरिएबल आपका मॉड के अंदर, जेंट के अंदर है ना, स्क्वायर रूट के अंदर या आपका एक्सपोनेंट में है, तो हमें किन बातों का ख्याल रखना है. स्क्वायर रूट में है तो वो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी 0 नहीं हो सकती. एक्सपोनेंट में है तो अगर a रेस पर x ले रहे हो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है. जेंट में आपको पता है क्या वैल्यूज लेते हैं, मॉड के अंदर है तो कैसे पीस वाइज बाहर निकालते हैं. तो वी डिड सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट. So I hope that you understood what we did today. Okay, so if you have any doubt you can always go through the lecture again and then see it carefully. All right, so that is all in this lecture beta. I hope you will enjoy the benefit of our courses. Thank you and bye bye.